بلیٹن کے آغاز میں آپ کو بتائیں کہ گجرات میں سڑکوں کی تعمیر کے ٹھیکوں میں کرپشن کا یہ کیس ہے۔ چودھری پرویز الہی کو اینٹی کرپشن کے مقدمے میں بری الذمہ قرار دے دیا گیا۔ اینٹی کرپشن حکام کا جوڈیشل مجسٹریٹ کے فیصلے کو چیلنج کرنے کا فیصلہ۔ گوجرانوالہ میں درج مقدمے میں پرویز الہی کو دوبارہ گرفتار کر لیا گیا ہے۔ گجرات میں سڑکوں کی تعمیر کے ٹھیکوں میں کرپشن اور اختیارات کا ناجائز استعمال۔ جسمانی ریمانڈ کے لیے اینٹی کرپشن حکام نے چودھری پرویز الہی کو ضلع کچہری کے جوڈیشل مجسٹریٹ غلام مرتضی ورک کے روبرو پیش کیا۔ اینٹی کرپشن کے وکیل نے پرویز الہی کے 14 روزہ جسمانی ریمانڈ کی استدعا کی اور بتایا کہ چودھری پرویز الہی نے سرکاری خزانے سے بوگس ادائیگیاں کی۔ پرویز الہی کے وکیل نے جسمانی ریمانڈ کی مخالفت کرتے ہوئے کہا کہ سیاسی بنیادوں پر گرفتار کیا گیا۔ دوران سماعت پرویز الہی نے کہا کہ تمام کام قانون کے مطابق ہوا ہے، اس مقدمے سے کوئی لینا دینا نہیں۔ عدالت نے فریقین کے دلائل مکمل ہونے پر محفوظ فیصلہ سنایا۔ جوڈیشل مجسٹریٹ غلام مرتضی ورک نے 5 صفحات پر مشتمل تفصیلی فیصلے میں کہا کہ کسی بھی ٹھوس شواہد کے بغیر ملزم پر زبانی الزام لگائے گئے۔ پروسیکیوشن ایک طرف کہہ رہی ہے بوگس انٹری کر کے رقم نکالی گئی، جبکہ محکمے سے کسی کو گرفتار بھی نہیں کیا گیا۔ تفتیشی نے عدالت کو اس بات سے آگاہ کیا ہے کہ اس کیس میں جو ایکسین نامزد ہے وہ ملک چھوڑ کر بھاگ گیا ہے، بجائے اس کے کہ کانٹریکٹر کو گرفتار کیا جائے۔ پروسیکیوشن ایکسین کو گرفتار کر رہی ہے، جس نے صرف فنڈ جاری کیے۔ ڈپارٹمنٹ کے خلاف کوئی بھی ایکشن نہیں لیا گیا۔ اینٹی کرپشن کی جانب سے کوئی بھی ثبوت یا ٹھوس شواہد عدالت میں پیش نہ کرنے پر چودھری پرویز الہی کو مقدمے سے بری کیا جاتا ہے۔ اینٹی کرپشن حکام کا جوڈیشل مجسٹریٹ کے فیصلے کو چیلنج کرنے کا فیصلہ۔ پرویز الہی کو گوجرانوالہ کے مقدمے میں گرفتار کر لیا گیا۔ سابق وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کا سیاست چھوڑنے کا اعلان۔ عثمان بزدار کا یہ کہنا ہے کہ ثانیہ 9 مئی کی شدید مذمت کرتا ہوں، سیاست سے دستبرداری کا اعلان کرتا ہوں، پاک فوج کے ساتھ کھڑے ہیں، کھڑے رہیں گے۔ مزید کیا کہا انہوں نے، سنیے۔ آج کل کی جو سیاسی صورتحال جو آپ لوگوں کے سامنے ہے، اس کے پیش نظر میں سر دست سیاست سے اپنی دستبرداری کا فیصلہ کرتا ہوں، اور اس کے علاوہ میں تمام سٹیک ہولڈر سے گزارش کروں گا کہ وہ اپنی ذات اور پارٹیوں سے نکل کر پاکستان کے بہتر مستقبل کے لیے سوچیں۔ یہی میری پاکستان کے تمام لوگوں سے گزارش ہے، اور میری نیک تمنائیں بھی تمام لوگوں کے ساتھ ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سب کو اپنی حفظ و امان اور اپنی خیریت سے رکھے۔ نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب کی زیر صدارت صوبائی کابینہ کا 16واں اجلاس ہوا۔ عوامی ریلیف کے منصوبوں ملازمین کی فلاح و بہبود کے لیے اقدامات کی منظوری دی گئی ہے، جبکہ اجلاس میں پنجاب سول سروس پینشن رولز میں ترمیم کی منظوری دی گئی ہے۔ ملازمین کو ریٹائرمنٹ کے بعد 65% پینشن کی فوری ادائیگی یقینی بنانی ہوگی۔ آپ کو بتائیں کہ نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب کی زیر صدارت صوبائی کابینہ کا 16واں اجلاس ہوا ہے۔ عوام ریلیف کے منصوبوں اور ملازمین کی فلاح و بہبود کے لیے اقدامات کی منظوری دی گئی ہے۔ اجلاس میں پنجاب سول سروس پینشن رولز میں ترمیم کی بھی منظوری دے دی گئی ہے۔ ملازمین کو ریٹائرمنٹ کے بعد 65% پینشن کی فوری ادائیگی یقینی ہوگی۔ عوامی ریلیف کے منصوبوں اور ملازمین کے فلاح و بہبود کے لیے اقدامات کی منظوری دے دی گئی ہے۔ شہداء پاک فوج کے لواحقین اور مختلف طلباء تنظیموں کے وفد کا جناح ہاؤس کا دورہ۔ شرپسندوں کی جانب سے جناح ہاؤس میں کی جانے والی تخریب کاری پر غم و غصے کا اظہار کیا گیا۔ 9 مئی کے واقعات کی شدید الفاظ میں مذمت کی گئی ہے۔ تفصیلات دیکھیے رپورٹ میں۔ شہداء پاک فوج کے لواحقین اور مختلف طلباء تنظیموں کے وفد کا جناح ہاؤس کا دورہ۔ شرپسندوں کی جانب سے جناح ہاؤس میں کی جانے والی تخریب کاری پر غم و غصے کا اظہار کیا گیا۔ 9 مئی کے واقعات کی شدید الفاظ میں مذمت کی۔ شہداء پاک فوج کے لواحقین نے کہا کہ شرپسندوں نے ہمارے قائد کا پورا گھر جلا دیا۔ شہداء کی ماؤں سے پوچھو ان کے دلوں پر کیا گزری ہے۔ ان شرپسندوں کی رہائی ہمارے لیے باعث موت ہوگی۔ کیپٹن کرنل شیر خان کا مجسمہ توڑا گیا۔ ایم عالم کے جہاز کو آگ لگائی گئی۔ یہ شرپسند اپنے آپ کو لیڈر کہتے ہیں۔ انہوں نے ایسے دہشت گرد پالے ہوئے ہیں جو وطن عزیز کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ جس دن حادثہ ہوا میں کھانا نہیں کھاتا۔ میں اپنے بیٹے نو کہا مینوں جس طرح کس طرح مینوں لے کے جا، مینوں دکھا کے لیا۔ سارا گھر میرے قائد دا سلاتا آرمی چیف صاحب رہا نہ کرنا، اور جس دن رہا ہوئے اس دن ساری موت ہوئے گی۔ جس قائد کی تصویر کے نیچے کھڑی ہوں اور جس کے اوپر لکھا ہے کہ قائد ہم آج شرمندہ ہیں، اور ہم واقعی شرمندہ ہیں کہ ان کے دیے ہوئے پاکستان کا ہم نے کیا حال کر دیا۔ شہداء کے ایک فیملی ممبر نے کہا کہ قائد اعظم کے گھر کی اتنی بھیانک اور ہولناک صورتحال دیکھ کر انتہائی دکھ ہوا۔ شرپسندوں نے مقدس مقامات کا بھی احترام نہ کیا۔ ہم پاک فوج اور وطن عزیز کے ساتھ کھڑے ہیں۔ By seeing such a terrible and horrible situation of our Qaid's house, I am feeling so rejected. Even they didn't respect the holy place. We stand with our army
and our country. Pakistan Zindabad, Pak Fauj Paindabad. तलबा ने कहा कि मुल्क की सलामती पाक फौज के साथ मुंसलिक है। जिन्ना हाउस को देखकर शदीद अफसोस हुआ। अल्लाह हमें ऐसी आफात से बचाए। पाक फौज हमारी रेड लाइन है। पाक फौज का दुश्मन पाकिस्तान का दुश्मन है। जिस तरह से जिन्ना हाउस में दहशतगर्दी का मुजाहरा किया गया है, अल्लाह हमें इस तरह के वाक़यात से महफूज रखे। 9 मई का ये जो सानिया हुआ है उसकी हम शदीद अल्फाज में जो है ना वो मजम्मत कर। पाक फौज है वो हमारी रेड लाइन है और इस रेड लाइन को जो अबूर करेगा वो नाकाबिले बर्दाश्त अमल होगा। तलबा तंजीमों के नुमाइंदों ने मुतालबा किया कि जो भी शरपसंद, मास्टरमाइंड या सहूलतकार इस घिनौने वाक़या में मुलविस हैं, उन्हें सख्त से सख्त सजा दी जाए। हम तब तक खामोश नहीं बैठेंगे जब तक इन शरपसंदों और फसादियों को निशाने इबरत न बना दिया जाए। टाइम्स हायर एजुकेशन इम्पैक्ट रैंकिंग 2023। लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन यूनिवर्सिटी की शानदार कामयाबी। लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन यूनिवर्सिटी मुल्क भर की यूनिवर्सिटीज़ में तीसरी और पंजाब की सतह पर पहली पोजीशन हासिल करने में कामयाब रही। तफसीलात क्या हैं, आतिफ परवेज़ बताएंगे। आतिफ, आगाह कीजिए। जी बिल्कुल, जामियात की रैंकिंग जारी करने वाले अदारे टाइम्स एजुकेशन ने जो है वो जामियात की नई रैंकिंग जारी की है और इसमें तर्जमान के मुताबिक जो है इम्पैक्ट फैक्टर रैंकिंग में 2023 में लाहौर कॉलेज बराए ख़वातीन यूनिवर्सिटी ने पाकिस्तान की तमाम सरकारी और निजी यूनिवर्सिटियों में तीसरी पोजीशन हासिल की है। लाहौर कॉलेज बराए ख़वातीन यूनिवर्सिटी पंजाब की तमाम सरकारी और निजी शोबे की यूनिवर्सिटियों में पहले नंबर पर आ गई है और तर्जमान ने मजीद कहा है कि लाहौर कॉलेज बराए ख़वातीन यूनिवर्सिटी ने पाकिस्तान की तमाम ख़वातीन की यूनिवर्सिटियों में पहली पोजीशन हासिल की है। लाहौर कॉलेज बराए ख़वातीन यूनिवर्सिटियों की दुनिया भर में मजमूई तौर पर 400 से 301 के दरमियान दर्जाबंदी में आई है। लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन यूनिवर्सिटी की पायदार तरक्की अहदाफ SDG 5 में 5वें नंबर पर है और लाहौर कॉलेज बराए ख़वातीन यूनिवर्सिटियों की पाकिस्तान में SDG 5 मसावात में पहली पोजीशन पर आई है। वाइस चांसलर लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन यूनिवर्सिटी ने इस कामयाबी पर इज़हार मुसरत किया और तमाम टीम को इस कामयाबी का क्रेडिट दिया है। जी ठीक है, अपडेट करने का बहुत शुक्रिया। PHA की अदम तवज्जी का मामला, पंजाब भर के पार्क्स की अबतर सूरत हाल। महकमा हाउसिंग के PHA हुकाम को लिखे गए मुरासले ने बांडा फोड़ दिया। मुरासले में पार्क्स में मुय्यना कोताहियों की निशानदही की गई है। मुरासले के मुताबिक पार्क्स में सफाई की सूरत हाल गैर तसल्लीबख्श है। पार्क्स में कैंटीन और खाने पीने के स्टॉल्स पर रेट लिस्टें भी अवेजा नहीं हैं। तफसीलात जाने के ज़ैनुल आबदीन से। ज़ैन, मज़ीद क्या लिखा गया है मुरासले में? ये हुकूमती अदारों की अदम तवज्जी के सबब पार्क्स में सियाहत के लिए आने वाले लाखों सेहत को दाव पर लगा दिया गया है। पंजाब भर के पार्क्स की अबतर सूरत हाल हो चुकी है। पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चर अथॉरिटीज ने पार्क्स पर खातर खा तवज्जो न दी। महकमा हाउसिंग के DGs PHS को लिखे गए मुरासले ने यह भांडा फोड़ दिया है। सूबाई वजीर हाउसिंग बैरिस्टर सैयद अख्तर अली नासिर के दौरे के दौरान पार्क्स में महकमाना गफलत सामने आई। महकमा हाउसिंग के मुरासले में पार्क्स में मुबैना कोताहियों की निशानदही भी की गई है। इस मुरासले के मतन में कहा गया है कि पंजाब भर के पार्क्स में सफाई की सूरत हाल गैर तसल्ली बख्श है। पार्क्स में कैंटीन और खाने पीने के स्टॉल्स पर रेट लिस्ट अवेजा नहीं की गई। इसके अलावा पार्क्स में लगे झूलों में हिफाजती इक़दामात को मलहूज़े खातर नहीं रखा जा रहा, जबकि झूलों में सवारी के लिए गाइडलाइन भी वज़ा नहीं की गई। इसके अलावा ये भी इंकशाफ किया गया है कि बारिशों के दौरान भी मैकेनिकल झूलों को बंद नहीं किया जाता, जो कि मुजरमाना गफलत है। इस मरासले के मुताबिक अनाड़ी, अनपढ़ और जिस्मानी मजदूर अफराद को मैकेनिकल झूलों के ऑपरेशन पर तैनात किया गया है। पार्क्स में वाक़े झीलों में बोटिंग के दौरान लाइफ जैकेट्स का भी इस्तेमाल नहीं किया जा रहा। जैकेट्स का इस्तेमाल भी नहीं किया गया। ठीक है ज़ैन, बहुत शुक्रिया अपडेट करने का। बड़ी ईद से पहले शहर में 10 कमर्शियल आरजी मवेशी मंडियां लगाने की तैयारी जारी है। 16 साल बाद मंडियों पर टैक्सेस लगाने का फैसला भी किया गया। व्यापारियों को शम्बियाने, साफ पानी समेत दीगर सहूलतें मिलेंगी, लेकिन टैक्सेस भी देना पड़ेंगे। नो प्रॉफिट नो लॉस के फॉर्मूले पर शहर में आरसी मवेशी मंडियों पर टैक्स लगेगा। व्यापारियों से फीकस बड़े जानवर का 1000 जबकि छोटे जानवर के 500 रुपए वसूल किए जाएंगे। टैक्स की वसूली का हदफ प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स को दिया जाएगा। इस बार कमर्शियल आरसी मवेशी मंडियों की तादाद 13 से कम करके 10 कर दी गई। टैक्स के बदले व्यापारियों को शामियाने, जनरेटर्स, साफ पानी, आरसी बैतुलखला की सहूलतें मिलेंगी। वाघा जोन में तुर्की रोड लखोडेर में आरसी कमर्शियल मवेशी मंडी सजेगी। निश्तर जोन में काना काछा,
साइबन रोड LDA एवेन्यू 1 में मवेशी मंडी लगेगी। अजीज भट्टी जोन में बरकी रोड पैरागॉन सोसाइटी के करीब मंडी में जानवरों की खरीदो फरोख्त होगी। रावी जोन में मेन सगिया रोड पर आरजी कमर्शियल मवेशी मंडी कायम होगी। DGBT जोन में हजरत उस्मान गनी रोड सगिया पर मवेशी मंडी लगेगी। शालीमार जोन में मनावा अस्पताल के करीब मवेशी मंडी सजेगी। अलामा इकबाल जोन में NFC सोसाइटी मेन मुल्तान रोड और सुंदर रोड पर मवेशी मंडियां कायम की जाएंगी। कमिश्नर लाहौर की हिदायत पर चीफ ऑफिसर ने डिप्टी कमिश्नर को खत लिख दिया है। आरजी कमर्शियल मंडियों की जिम्मेदारी जिला इंतजामिया के सपुर्द कर दी गई। कैमरा टीम के हमरा इमरान अकबर, लाहौर न्यूज। पार्क्स एंड हार्टिकल्चर अथॉरिटी में मुबैना बेज़ाब्तियों का इंकशाफ हुआ। PHA की जानिब से LDA और वासा को नवाजा गया। PHA ने मेगा प्रोजेक्ट के अवज़ दीगर अथॉरिटी से शजरकारी के पैसे वसूल नहीं किए। शजरकारी की मद में 51 करोड़ 38,50,000 रुपये की रिकवरी नहीं की गई। ये रिपोर्ट देखिए। PHA में बेज़ाब्तियों का मुनफरिद केस सामने आ गया। PHA की जानिब से मुबैना तौर पर LDA और वासा को नवाजा गया। मेगा प्रोजेक्ट के एवज दीगर अथॉरिटी से शजरकारी के पैसे वसूल न किए। PHA ने शजरकारी कीमत में 51 करोड़ 38,50,000 रुपए की रिकवरी न की। रिकवरी न होने से PHA को माली मुश्किलात का सामना है। वज़ीर आला के जुलाई 2011 के नोटिफिकेशन में PHA को मेगा प्रोजेक्ट का 1% वसूल करने का हुक्म दिया गया। LDA ने मासी में मेगा प्रोजेक्ट बनाए मगर शजरकारी की मद में पैसे न दिए। मेट्रो बस, कलमा चौक फ्लाईओवर, अंडरपास और ओरिएंट ट्रेन के हॉर्टिकल्चर के फंड्स न दिए गए। जेल रोड सिग्नल फ्री कॉरिडोर, केनाल रोड तोसी और बीजिंग अंडरपास के हॉर्टिकल्चर फंड्स भी न मिले। रिकवरी न करने पर ऑडिटर जनरल और SDAS ने भी एतराजात उठाए। ऑडिटर जनरल के एतराजात के बावजूद PHA ने रिकवरी न की। PHA इंतजामिया का कहना है कि वसूलियों का मामला पंजाब हुकूमत के सामने उठाया है और फंड्स के इजरा की सिफारिश की है। कैमरा टीम के हमरा जैनुल आबिदीन, लाहौर न्यूज। पंजाब फूड अथॉरिटी का सेहत दुश्मन अनासर के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। अहमद पार्क में मुरब्बा और अचार तैयार करने वाले यूनिट पर छापा मारा गया। नाकिस इंतजामात पर यूनिट सरबेमोहर कर दिया गया है। पंजाब फूड अथॉरिटी की टीम ने 1000 किलो फंगस ज़दा मुरब्बा बरामद करके तल्फ कर दिया। DG फूड अथॉरिटी राजा जहांगीर अनवर ने बताया कि यूनिट में सफाई के इंतहाई नाकिस इंतजामात और तैयार मुरब्बा अचार में फंगस पाई गई। मसनूई फ्लेवर्स, केमिकल के इस्तेमाल और गैर मियारी स्टोरेज पर कार्रवाई की गई है। मुलाजमीन के मेडिकल्स और फूड लाइसेंस भी मौजूद नहीं थे। खुराक के मेयार पर हरगिज़ समझौता नहीं किया जाएगा। कवानीन की खिलाफवर्जी पर सख्ती के साथ निपटा जाएगा। लाहौर हाई कोर्ट का ट्रैफिक पुलिस से झगड़ा करने वालों के खिलाफ फौरी मुकदमा दर्ज करने का हुक्म दिया गया है। जस्टिस शाहिद करीम ने रिमार्क्स दिए हैं कि बदतमीजी करने वालों से नरमी नहीं बरती जाएगी, चाहे वो मेरा बेटा ही क्यों ना हो। लाहौर हाई कोर्ट में स्मोक के तदारुक से मुतल्लिक केस। जस्टिस शाहिद करीम ने केस पर समाअत की। वफाक की जानिब से डिप्टी अटार्नी जनरल असद अली बाजवा और पंजाब हुकूमत की खातून लॉ ऑफिसर पेश हुई। दौरान समाअत माहौलियाती कमीशन ने अदालती अहकामात पर अमल दरामद की रिपोर्ट पेश की। माहौलियाती कमीशन के मेंबर ने अदालत को आगाह किया कि फसलों की बाकियात जलाने पर 2 लाख के बजाय सिर्फ 50,000 जुर्माना किया जा रहा है। अदालत ने आइंदा समाअत पर डिप्टी कमिश्नर शेखुपुरा से रिपोर्ट तलब कर ली। मेंबर माहौलियाती कमीशन ने कहा कि ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वालों को भारी जुर्माना नहीं किया जा रहा। लोग ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी भी करते हैं और ट्रैफिक पुलिस से झगड़ते भी हैं। जस्टिस शाहिद करीम का ट्रैफिक पुलिस से झगड़ने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई न करने पर बरहमी का इजहार। ट्रैफिक पुलिस से झगड़ा करने वालों के खिलाफ फौरी मुकदमा दर्ज करने का हुक्म। बदतमीजी करने वालों को पूरा जुर्माना करने की हिदायत। जस्टिस शाहिद करीम ने रिमार्क्स दिए कि सीनियर अफसर इतने कमजोर हैं कि अब लोग दलेर होकर पुलिस वालों से झगड़ते हैं। बदतमीजी करने वालों से नरमी न बरती जाए, चाहे वो मेरा बेटा ही क्यों ना हो। मेंबर माहौलियाती कमीशन ने अदालत को बताया कि सरकारी स्कूलों में 56,000 दरख्त लगाने का मंसूबा है। शहर के 7,000 निजी तालीमी इदारों में शजरकारी का प्लान है। अदालत ने तमाम तालीमी इदारों की ग्राउंड्स में तामीरात पर पाबंदी आयद कर दी। अदालत ने केस की मजीद समाअत 9 जून तक मुलतवी कर दी।